Hi everyone. So, Hi everyone. I hope I am audible to all of you. Okay. So let's start the lecture. Today in this lecture we are going to cover DOM manipulation, which is very important topic in JavaScript. Okay. So I'm just going to share my screen. Okay. So as you already know, guys, when I talking about JavaScript, okay. So DOM is very important topic. The DOM full form, as you are able to see my screen. Okay. So the DOM full form is document object model. The document object model is represent that structure of web pages as a tree of object. It allows JavaScript to access, modify the content, structure, and style of HTML element dynamically. For example, when I talking about let's try to understand with this figure. Okay, in the initial first in the initial phase, like we have a first document, if you're able to open any particular document, if HTML document. Okay, so first of all, like you are able to see the HTML tag. Okay, that is known as root element. Okay, and inside the root element we are able to see the head tag, and also we are able to see the body tag. Inside the head tag we are able to see the title tag, and inside a body tag we are able to see the lots of tag like h1 tag, p tag, sprint tag, and lots of things. If I'm saying to you, you need to design this structure. Okay, so how we are going to design it? So let's try to create another index file. Okay, index dot html. Okay, I'm just created here index.html, it's the index.html. Okay, and I wanted to design the web page like that. मतलब इस फिगर को देख के मुझे बनाना है ना? तो सबसे पहले हमारे पास HTML है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड आता है वो कोड हम जनरेट करा लेते हैं ऑफ HTML का, है ना? सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है HTML टैग, एंड HTML टैग यू आर एबल टू सी दिस इज द और HTML टैग, है ना? यहाँ पे ठीक है, ये हमारा HTML टैग है ना? एंड इन द HTML टैग हमें क्या कह रहा है? HTML टैग में हमारे पास आता है क्या? सबसे पहले हेड टैग आएगा और इसी के साथ में बॉडी टैग आएगा। तो मैं यहाँ पे अगर हेड टैग लिखूँ, है ना, हेड टैग, एंड मैं प्रेसिंग इंटर बटन, सो यू आर एबल टू सी दिस इज द हेड टैग, एंड हेड टैग के अंदर हमारा बॉडी टैग नहीं आएगा बिकॉज यू आर एबल टू सी रूट एलिमेंट है, तो एक साइड में हेड टैग है और दूसरे साइड में बॉडी टैग है, तो इसके नीचे आएगा बॉडी टैग, राइट? जिसे हम HTML में कर ही रहे होते हैं, है ना? सो दिस इज द बॉडी टैग। एंड आफ्टर क्या बोल रहा है? हेड टैग के अंदर वी नीड टू राइट ओवर देयर टाइटल टैग। So let's write a title tag inside a head tag. Let's write a title tag. Inside a title tag, what we need to write? Our title. So just I'm going to write here my title. Either we can write DOM manipulation. Okay. And after that, inside a body tag, what we need to do? First we need to write our h1 tag, है ना? तो बॉडी के अंदर मैं आ जाता हूँ। बॉडी के अंदर मुझे रखना है h1 टैग। h1 टैग के अंदर कुछ हेडिंग देंगे, है ना? जो भी हेडर होगा, हेडिंग होगा, वो देंगे, और उसके बाद पैराग्राफ टैग, तो पैराग्राफ टैग भी बना लेते हैं, है ना? ठीक है। और h1 टैग के अंदर हमें क्या बनाना है? जस्ट वी नीड टू राइट अ हेडिंग, तो लाइक छोटा सा यहाँ पर टेक्स्ट उठा लेते हैं, essential JavaScript document object model, and just I'm copying and pasting here inside the h1 टैग। ठीक है। पैराग्राफ टैग के अंदर भी कुछ यहाँ से कंटेंट डालो छोटा सा, है ना? ठीक है, just paste it here inside it,
नाउ वी आर गुड टू गो। अभी हमने क्या करा, अभी हमने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना लिया है ना। जब कभी भी डॉम मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं तो सबसे पहली कोई चीज़ रेंडर होती है ना। सबसे पहला कुछ वेब पेज पे दिखता है, सबसे पहला हमारा HTML टैग आता है ना। HTML टैग के अंदर हमारे पास होता है हेड टैग के साइड में होता है बॉडी टैग, एज यू ऑलरेडी नो। हेड टैग के अंदर होता है हमारा टाइटल टैग, देन H1 टैग इनसाइड अ बॉडी टैग एंड पैराग्राफ टैग, स्पैम टैग, देयर आर लॉट ऑफ टैग विच वी आर यूजिंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ विद प्रीटियर। ओके, एंड मैं इसको गो लाइव बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि मैंने गो लाइव बटन पे क्लिक किया। जैसे ही गो लाइव बटन पे क्लिक किया, सो यू आर एबल टू सी हमारे पास जो H1 टैग का जो था वो दिख रहा है और इसके नीचे पैराग्राफ टैग दिख रहा है। अब हमें थोड़ा सा इसमें लगाना है, देखना है कि एक्चुअली मतलब क्या डॉम होता है ना। तो डॉम यू ऑलरेडी एबल टू सी हियर है ना, कि डॉक्यूमेंट को हम रूट एलिमेंट बोलते हैं, फिर उसके अंदर जो एलिमेंट होता है दैट इज़ हेड टैग, उसके बाद जो एलिमेंट होता है बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर फिर हेड टैग के अंदर होता है टाइटल, टाइटल के अंदर हम अपना टाइटल लिख रहे होते हैं। देन हियर लाइक यू आर एबल टू सी कि हमारा बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर एंकर टैग है, देन H1 टैग है, SRF है, उसका टेक्स्ट है। सो दीज आर द ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ना। जैसे हम अगर आपने ट्री डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा है ना, तो ट्री में भी ऐसे ही होता है। तो हम यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है इसको हम लोग HTML को रूट मान सकते हैं, और रूट के ये सब नोड्स हैं है ना। ये लेफ्ट नोड है, सॉरी ये राइट नोड है, ये लेफ्ट नोड है, फिर उसके सब चाइल्ड है, लेफ्ट सब चाइल्ड, राइट सब चाइल्ड, इस तरीके से इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरीके का स्ट्रक्चर। नाउ आई वॉन्टेड टू अप्लाई हियर है ना। मैं क्या करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करने हैं है ना। तो हाउ वी कैन डू चेंजेस, मुझे CSS थोड़ा बहुत यूज करना पड़ेगा है ना कुछ भी चेंजेस करने के लिए। तो एक CSS फाइल बनाते हैं है ना। लेट्स क्रिएट अ CSS फाइल। अब कभी भी यू ऑलरेडी नो इफ यू वांटेड टू ऐड अ CSS फाइल, सो ट्राई टू ऐड इनसाइड अ हेड टैग है ना। तो मैं यहाँ पे लिंक करता हूँ, लिंक के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ CSS ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा, वी आर एबल टू गो इनसाइड CSS टैग। तो CSS मुझे स्टाइल करना है, तो उसके लिए लाइक वी कैन सेलेक्ट H1 टैग, वी कैन सेलेक्ट P टैग है ना। तो मान जाओ कि मुझे H1 टैग को करना है सेलेक्ट है ना, एंड इसमें स्टाइल करना है। तो स्टाइल कुछ यूँ करना है कि जस्ट आई वांटेड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर बिट है ना। सो हाउ वी कैन चेंज इट, यू ऑलरेडी नो CSS है ना। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लिखूँगा, बैकग्राउंड कलर, एंड आई पुट ओवर द ये कुछ डार्क जो भी हो ये कुछ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, और हमने H1 टैग P टैग बनाया, वी कैन क्रिएट अ बटन टैग एज वेल है ना। तो बटन भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पे है ना। जैसे क्लिक मी, मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक मी, जैसे क्लिक मी पे करके सेव करूँगा तो यहाँ पे बटन इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा है ना। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, H1 को तो हमने सेलेक्ट किया, उसका कलर जैसे बैकग्राउंड कलर ये डाल दिया, उसका कलर थोड़ा सा कुछ कर देते हैं और चेंज है ना, हल्का फुल्का। उसके बाद हम अप्लाई कर पाएंगे है ना। तो इसका कलर कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल रेड। सेव करूँ तो यहाँ पे जो आपको रेड आ रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, ब्लैक ही रहने दें। चलो ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू, नाउ फॉर एग्जांपल जो बॉडी टैग है ये हमारा प्रॉपर बॉडी टैग के अंदर सब कुछ कोड आ रहा है ना। बॉडी टैग का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, सो आई कैन सेलेक्ट बॉडी टैग एंड वी कैन चेंज द इंटायर कलर ऑफ इट, बैकग्राउंड कलर है ना। और कुछ ऐसा सा ये वाला कोड ले लेते हैं, थोड़ा हल्का हल्का बैकग्राउंड चेंज हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से मैं जो बटन है बटन पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो बटन को मैं सेलेक्ट करूँगा ऐसे BOTTON, and we can change the background color of button which is white
वाइट हो गया और कलर इसका ब्लैक कर देंगे टेक्स्ट का। ठीक है, जस्ट सेव इट एंड सी। अभी हमारे पास एक तरीके से प्रॉपर स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो गया है ना। नाउ व्हाट वी नीड टू डू गाइस हियर, ओके, अब हमें यहाँ पे यूज करना है जावा स्क्रिप्ट को, है ना। तो जावा स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए, है ना, हमें क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के फाइल को यूज एड करना होगा, है ना। सो वी नीड टू एड जावा स्क्रिप्ट फाइल हियर, ओके। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन एड जावा स्क्रिप्ट फाइल हियर। तो पहले ही हमने पता है कि जावा स्क्रिप्ट फाइल को हम या तो यहाँ पे एड कर सकते हैं, आइदर वी कैन एड जावा स्क्रिप्ट फाइल इनसाइड अ हेड टैग, है ना, आइदर वी कैन एड जावा स्क्रिप्ट फाइल आफ्टर बॉडी टैग, मतलब बॉडी टैग जैसे ही बॉडी टैग का पूरा कोड कंप्लीट होता है वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, आइदर वी कैन ऐड इनसाइड अ टाइटल टैग, सॉरी टाइटल टैग बोल रहा हूँ, हेड टैग, और या तो स्क्रिप्ट बना के भी लिख सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंड फॉर डेवलप, है ना। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ, स्क्रिप्ट टैग में मैं यहाँ पे सारसी देता हूँ, पाथ, फाइल का पाथ, और एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस नहीं बना है, ठीक है, फाइन। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर स्क्रिप्ट डॉट जेएस, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। मैं इसको सेव करूँगा थोड़ा, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा तो फाइल हमारी बन जाएगी, है ना, एंड वी आर एबल टू गो इनसाइड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अभी हमें यहाँ पे डॉम मैनिपुलेशन अप्लाई करना है ना। तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या, ठीक है, और कंसोल लॉक करते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे लॉक करूँ, ठीक है, लॉक करूँ तो यहाँ पे हेलो वर्ड आएगा, प्रिंट करूँ हेलो, ठीक है, सेव करूँ। तो अगर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, राइट, एंड मैं एक बार क्लिक करूँ कंसोल पे, सो यू आर एबल टू सी हेलो हमारे पास प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक अलर्ट बॉक्स लगाना चाहता हूँ, ऐसे ALERT अलर्ट, और अलर्ट के अंदर कुछ यहाँ पे भेजना चाहता हूँ कि हेलो आ रहा है, जैसे हाय, लाइक दैट, ठीक है। एंड जैसे हाय लिख के मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो यहाँ पे जाऊँगा तो एक पेज रिफ्रेश होके आएगा, है ना। जब तक हम ओके नहीं करेंगे, है ना, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो एक तरीके से इस पे कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कंसोल पे भी जाता हूँ, इस तरीके से इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। तो इस तरीके से जैसे ये पेज रिलोड हो रहा है तो यहाँ पे हाई लिख के आ रहा है, जो हमने लिखा था वहाँ पे, है ना, यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में। So if you're writing any particular thing in alert box, it is visible to you on the browser, and after you need to click your like OK button. जैसे ही OK पे क्लिक करोगे उस तरीके से उसके बाद वो ऑप्शन होगा। तो जैसे ही हम अलर्ट बटन लगाते हैं तो होता क्या है, अलर्ट वो एक तरीके से स्टॉप कर देता है प्रॉपर परफॉर्मेंस, है ना। तो सब कुछ स्टॉप हो जाता है और कुछ कोड रन नहीं होता। जैसे मैं अगर यहाँ पे चेंज करूँ, click this to start, ठीक है, just save it, go here, refresh this page। तो जैसे मैंने किया तो यहाँ पे आ रहा है क्लिक दिस टू स्टार्ट, उसके बाद जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे उसके बाद पेज हमें दिख रहा होगा, ठीक है। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, है ना, बिकॉज अभी हमें मुझे अलर्ट बॉक्स नहीं लगाना है ना। अब मान जाओ मुझे क्या करना है कि ये जो भी चीज़ें प्रिंट हो रही है ना, इसे मुझे प्रिंट करना है इनसाइड HTML, मतलब इनसाइड जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में सब कुछ प्रिंट करने के लिए हम विंडो को भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट होता है एंड ऑल, तो वी कैन जस्ट राइट ओवर दियर लॉग, ओके, एंड वी कैन लॉग द विंडो, है ना, विंडो, एंड जस्ट सेव इट एंड गो हियर। सो यहाँ पे विंडो हमारा प्रिंट होकर पूरा आ रहा है। तो विंडो में क्या क्या है, यू कैन जस्ट सी ऑल द थिंग्स। यहाँ पे अलर्ट है, देन ब्लर है, और देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इज देयर, है ना। सो सब कुछ वहाँ पे देख सकते हो विंडो में, देखो। और यहाँ पे पेरेंट भी है, परफॉर्मेंस है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, है ना। यू कैन गो थ्रू वन बाई वन एंड यू कैन एक्सप्लोर। विंडो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, है ना, तो ये विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग भी लिख सकते हैं। ये एक्चुअली होता है हिडन होता है हमेशा, है ना, और ये विंडो से ही चीज़ें आ रही होती हैं। तो विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग हमने लिखा तो विंडो की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है, इस तरीके से।
देखिए विंडो के अंदर सब कुछ दिख रहा है। तो ये विंडो हाइड होता है हमेशा से, है ना, और हमें बस कंसोल डॉट लॉग या फिर वो भी सारी चीज़ें लिखना होता है। तो इसको हम प्रिंट करा के देख भी सकते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है ना। सेम इसी तरीके से गाइस जो विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट होते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मैंने बताया कि क्या होता है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे पास, है ना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर HTML टैग होता है, दैट इज़ नोन एज रूट, देन हेड टैग एंड ऑल। तो इस डॉक्यूमेंट को भी हम प्रिंट करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे इसको बस कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और यहाँ पे विंडो डॉट डॉक्यूमेंट करता हूँ, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट। मैं इसको सेव करूँगा। जैसे सेव करूँगा तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट अभी प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। तो एक काम करते हैं, लाइक अनडिफाइंड आ रहा है तो यहाँ पे क्या करते हैं, dir लगाते हैं। जिस इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे dir यूज़ करते हैं। dir में मतलब अगर मैं बताऊँ, राइट, सो यहाँ पे अगर मैं होवर करूँ तो क्या है कि कंसोल डॉट स्टैटिक मेथड डिस्प्ले ऑफ अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ दैट इज स्पेसिफाई जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो मतलब एक तरीके से जैसे प्रिंट करने का ही एक फीचर होता है ना। जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिस्ट आउट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड, ठीक है, फाइन। अभी मैं क्या करूँगा, चलिए अनडिफाइंड इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट को अच्छे से लिख नहीं रहे हैं, है ना। अब मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का आईडी आ रहा है, देखो। जैसे मैंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट अच्छे से लिखा, तो जैसे ही कंसोल पे क्लिक कर रहा हूँ और पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास दिख जाएगा डॉक्यूमेंट। मैं इसको क्लिक करूँगा तो डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हमें दिख रही होंगी इस तरीके से, है ना। डॉक्यूमेंट में हमारे पास जो उसका इंडेक्स डॉम डॉट HTML है वो दिख रहा है, डोमेन दिख रहा है अभी। सिमिलरली उसके अंदर जो नोड हैं वो सारे दिख रहे हैं। देन यू आर एबल टू सी हमने जो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया है वो सारा चीज़ दिख रहा है। देन डॉम मैनिपुलेशन हमने टाइटल दिया वो भी दिख रहा है ना। तो इसी तरीके से सब कुछ हमें दिख रहा है, राइट। दैट इज़ नोन एज डॉम मैनिपुलेशन। ये इसके मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम मैनिपुलेशन। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जिस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा रहे हैं तो इसी तरह से डॉक्यूमेंट के अंदर भी जाके, जैसे मान जो कि यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले आया हमारे पास। डॉक्यूमेंट के अंदर और क्या आएगा, डॉक्यूमेंट के अंदर हेड है, डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी टैग है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो हेड आ रहा है ना, हेड को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो कैसे करा सकते हैं हेड को प्रिंट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट हेड, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर हेड। मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे भी कर देता हूँ हेड डॉट हेड। अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। सो यहाँ पे जैसे इसको इंस्पेक्ट करके यहाँ पे जाऊँगा, इन कंसोल यू आर एबल टू सी द हेड। हेड में हमारे पास क्या क्या है, तो हेड टैग के अंदर यू आर एबल टू सी हमारे पास हेड टैग के अंदर क्या क्या है। हेड टैग के अंदर हमारे पास है टाइटल टैग, टाइटल टैग के अंदर है लिंक, और टाइटल टैग के अंदर देयर आर सम थिंग्स इज देयर। तो देखो यहाँ पे इनर HTML के अंदर टाइटल टैग के अंदर डॉम मैनिपुलेशन है, फिर ये सारी चीज़ें हैं, फिर हमने स्टाइल को लिंक किया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है ना। देखो टैग नेम हेड है तो वो भी दिख रहा है। तो जितने भी चीज़ें हमने लिखा है इनसाइड लाइक HTML, वी कैन एक्सेस ऑल द कंटेंट और ईच एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू, है ना। अगर मैं चाहूँ, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइक हेड टैग को जैसे मैं एक्सेस कर रहा हूँ, हेड को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, उसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं इस पर प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाऊँ, देखो यहाँ पे हेड टैग पूरा ही पूरा प्रिंट हो जा रहा है, मतलब कंसोल लॉक करा रहा हूँ विंडोज डॉट डॉक्यूमेंट डॉट हेड। सो वी आर एबल टू प्रिंट ईच एंड एवरीथिंग जो कि हेड टैग के अंदर ऑलरेडी मौजूद है ना। टाइटल टैग है उसके अंदर, फिर लिंक टैग की मदद से स्टाइल को लिंक किया है, फिर ये बाई डिफ़ॉल्ट कुछ तो कोड आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है।
इसी तरीके से हेड टैग के अलावा जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग को भी हम प्रिंट कर सकते हैं, है ना। तो बॉडी टैग को प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पहले तो कमेंट करना पड़ेगा मुझे, एंड यहाँ पे लिखूँगा मैं लॉग, ठीक है। लॉग के अंदर मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट विंडो, मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है बार बार, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट योर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा, ये बॉडी टैग पूरा प्रिंट होगा। बॉडी टैग के अंदर जो H1 टैग था वो भी देख पा रहे हैं हम लोग, P टैग है वो भी, देन बटन का जो कोड था वो भी देख पा रहे हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं इसके अंदर, है ना। और जैसे मैं वहाँ पे ले जा रहा हूँ कर्सर, तो वो कवर भी कर रहा है, बता भी रहा है कि हम लोग यहाँ पे हैं अभी, इसको एक्सेस करना चाहते हैं, इसको एक्सेस करना चाहते हैं, लाइक दैट, ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज लाइक बॉडी टैग, है ना। तो अब मैं इसको कमेंट करूँ, है ना, कमेंट करके फिर यहाँ पे मैं DIR अगर चलाऊँ, है ना, DIR और मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, तो इस तरीके से सब कुछ इसके अंदर जो भी कंटेंट है, जितने भी नोट्स हैं, सारे कुछ दिखेंगे इस तरीके से, है ना, जैसे आप देख सकते हैं। Even though guys, if you wanted to use here, तो वो भी देख सकते हो। जैसे मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, है ना, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, सॉरी, ठीक है। तो जैसे इंटर करूँगा तो जो बॉडी है वो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, है ना। डॉक्यूमेंट डॉट हेड को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वी कैन एक्सेस लाइक दैट, डॉक्यूमेंट डॉट हेड। चलिए DO रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट हेड, एंटर करूँगा जैसे, तो हेड हमारा प्रॉपर इस तरह प्रिंट हो जाएगा। हेड टैग के अंदर जो भी कंटेंट होगा, हमने जो भी कुछ लिखा था, उस तरीके से प्रिंट होगा। मैं ऐसे चाहूँ तो डॉक्यूमेंट के हेड के अंदर जो टाइटल है ऐसे भी प्रिंट कर सकता हूँ, तो वी कैन राइट हियर DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट हेड, एंड हेड के अंदर जो टाइटल है उसको हम प्रिंट कर देंगे। मैं इसको इस तरह करूँ तो टाइटल कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है अभी, है ना। टाइटल में कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ क्या, कर सकते हैं, इस तरीके से असाइन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से टाइटल उसका चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं गाइस, है ना। इवन दो इफ़ यू वांटेड टू चेंज द कलर, है ना, जैसे मान जाओ कि मुझे कलर चेंज करना है इस डॉक्यूमेंट का विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। हम CSS में तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर हमने दिया है वो दिया ही है, हमें CSS की मदद से नहीं, हमें जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज करना है। तो लेट्स ट्राई टू सी हाउ वी कैन चेंज द कलर विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, विद द हेल्प ऑफ डाउन मैनिपुलेशन। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, है ना। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट, है ना। डॉक्यूमेंट के अंदर, है ना, डॉक्यूमेंट के अंदर जो बॉडी टैग है हमारा उसको करूँगा सेलेक्ट, है ना। अब बॉडी टैग के अंदर जो स्टाइल्स है ना, स्टाइल्स है उसका जो बैकग्राउंड कलर है उस बैकग्राउंड कलर को करूँगा सेलेक्ट, है ना। और पहले फॉर एग्जांपल पहले अभी बैकग्राउंड कलर इसका कुछ यू दिख रहा है ना, तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ अलग कलर लिखूँगा, जैसे मान लो ग्रीन मुझे लिखना है, ठीक है। और मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर हमारा विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हमने पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया, है ना, ग्रीन कर लिया। तो मैं ग्रीन थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जा रहा है तो हल्का येलो कर देते हैं ना, तो अभी येलो पे थोड़ा दिख रहा है चीज़ें। इस तरीके से हम पूरा बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, एंड नॉट फ्रॉम हियर ओनली, है ना। अगर सेम कोड अगर आप कॉपी करो यहाँ से, अभी सेव करो तो हट जाएगा, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, इंस्पेक्ट पे कंसोल पे आ जाते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, है ना। और जैसे इंटर करूँगा तो
यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं बहुत ईजीली, वी आर एबल टू सी राइट। यहाँ से भी हम कलर को चेंज कर सकते हैं। अभी तो येलो है, मैं येलो से यहाँ पे रेड पिक कर सकता हूँ बहुत ईजिली, रेड हो गया। देन इफ यू वांटेड टू चेंज एनी पर्टिकुलर थिंग, एनी अदर कलर लाइक वाइट करना चाहते हो तो वाइट भी हो जाएगा, वैसे वाइट भी हो गया है ना। इस तरीके से हम एक्सेस, अभी देखो वाइट हो गया, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा और फिर सेव करूँगा तो येलो हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं बहुत ईजिली, है ना। देन ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसको करने के बाद अभी मान जाओ कि जो यहाँ पे इनर टेक्स्ट है ना, मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो अगर कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग करा के एंड डॉक्यूमेंट के बॉडी को मुझे प्रिंट कराना है। सो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी यूज, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा और हाँ, यहाँ पे जाके आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक राइट, और राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट करने के बाद जो कंसोल वाला ऑप्शन हमारा आएगा, यहाँ से हम देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले बॉडी इस तरीके से आ रहा है, अच्छा इसमें हमारा काम नहीं है इसका। तो अभी यहाँ पे मैं करता हूँ DIR, मुझे देखना है सबके नोट्स, चाइल्ड्स नोट जितने भी थे वो सब देखना है। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे उसे, ऐसे ऐसे बॉडी आ गया। अभी हमें क्या देखना है इसमें, है ना, कि जो बॉडी के अंदर जो चाइल्ड्स नोट होता है ना वो देखना है। तो यहाँ पे मैं चाइल्ड वाले सेक्शन पे आऊँगा। देखो यहाँ पे देखो चाइल्ड नोट्स के अंदर हम देख पा रहे हैं कि हमने जो पहले टेक्स्ट लिखा था ना, टेक्स्ट का भी इस तरीके से है लिखा गया है। देन हम टेक्स्ट के दिन पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग 3 पे है, देन बटर टैग 5 पे है, देन स्क्रिप्ट टैग 7 पे है, 7 इस तरीके से कमेंट है 9 पे। इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे मैं 0 पे क्लिक कर रहा हूँ तो H1 1 पे एग्जिस्ट करता है, तो मैं H1 को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और उसमें टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं। ये H1 है, सॉरी ये वाला H1 है, H1 के अंदर ये वाला टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डू दिस। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मुझे टेक्स्ट को कनेक्ट चेंज करना है। सो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर है। और बॉडी के अंदर जो हमारा चाइल्ड नोट है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा चाइल्ड नोट, एंड ये था 1 पे। और जो उसका इनर का टेक्स्ट है ना, जो इनर टेक्स्ट है उसका इनर टेक्स्ट, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ इस तरीके से वैल्यूज इंसर्ट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ए लिखूँगा मैं, यहाँ पे सेव करूँगा Ctrl+S, तो यहाँ पे देखो ए हो गया, मतलब पूरा टेक्स्ट वहाँ पे चेंज हो गया, है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि माई नेम इज रोहन, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे माई नेम इज रोहन आ जाएगा। तो जो पहले इसका टेक्स्ट था वो पूरा प्रॉपर टेक्स्ट चेंज हो गया विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। मैं इसे कमेंट करूँ, कमेंट करके सेव करूँ तो यहाँ पे पहले वाला पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड आ जाएगा, है ना। फिर मैं इसे कमेंट करूँ और सेव करूँ तो फिर ये आ जाएगा, है ना। तो ये हम डायनेमिकली हम चेंज कर रहे हैं किसी भी टेक्स्ट को। हम HTML में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। HTML में तो जो पहले से लिखा था वो लिखा ही था, है ना। विद द हेल्प ऑफ DOM मैनिपुलेशन वी आर चेंजिंग द टेक्स्ट, चेंजिंग द डिटेल्स, है ना। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप चाहो तो पैराग्राफ टैग को भी मतलब कर सकते हो, उसमें भी चेंज। तो पैराग्राफ टैग के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं जाऊँ, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसोल में जाना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा चाइल्ड नोड में। चाइल्ड नोड ये है, चाइल्ड नोड का पैराग्राफ टैग में जाऊँ तो मैं 3 ऑप्शन आ रहा है,
3 वाला थर्ड ऑप्शन, तो मैं थर्ड को करूँगा सेलेक्ट और उसके बाद से इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 और मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो माय नेम इज़ रोहन आ गया यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ अलग लिखना चाहता हूँ पैराग्राफ में, मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ टैग, सेव इट एंड यू आर एबल टू सी इट इज चेंजेस। इसी तरीके से चाहो तो बटन को भी चेंज कर सकते हो, बटन के भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे राइट क्लिक करो सबसे पहले, राइट जैसे ही क्लिक करोगे तो कंसोल में जाओ, ये चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, तो यहाँ पे जाना है चाइल्ड नोड में, है ना। तो चाइल्ड नोड में जो भी चीज़ें यहाँ पे जाएंगी, है ना, सबसे पहले चाइल्ड नोड में जाओ एंड ये बटन के लिए 5 आ रहा है ना, 5 पे क्लिक करो और देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें बटन के लिए भी आ रही हैं। तो बटन के लिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो बटन का भी टेक्स्ट बहुत ईजी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 5। तो 3 की जगह बस 5 यूज करना है और हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। चाइल्ड नोड में जाऊँगा मैं, चाइल्ड नोड में बटन, हाँ 5 है। तो यहाँ पे बस जो यहाँ पर टेक्स्ट 3 हम लोग लिख रहे हैं, बस यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूँ, ठीक है, और सेव करूँ तो देखो ये दिस इज़ द पैराग्राफ पूरा चेंज हो गया, पैराग्राफ टैग, है ना, इस तरीके से। यहाँ पे भी 3 रहने देता, है ना। सो विद द हेल्प ऑफ दिस गाइस वी कैन चेंज एनी पर्टिकुलर थिंग, है ना, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। इवन दो इफ यू वांटेड टू एड अ इमेज विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट DOM मैनिपुलेशन, यू कैन एड इमेजेस एज वेल ऑन आवर वेब पेज, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इफ यू आर एबल टू सी, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट होता है वो ऑनर होता है सभी नोट्स का, उसके अंदर HTML टैग होता है, HTML टैग के अंदर हेड टैग होता है, हेड टैग के साथ में बॉडी टैग होता है, फिर बॉडी टैग के अंदर एंकर टैग होता है, फिर href, h1, माई हेडर, दीज ऑल द थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने दिखाया भी है कि ठीक है, लेट्स ट्राई टू यूज वन आईडी, एक आईडी बनाते हैं और उसके हिसाब से आईडी की मदद से चेंज करते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं इसके अंदर जाता हूँ, ठीक है, और H1 टैग के अंदर एक आईडी बना देते हैं, है ना। तो आईडी हमेशा यूनिक ही होती है ना। सो जस्ट राइट आईडी, माई आईडी करता है, ठीक है, माई आईडी यहाँ पे लिखते हैं और इसको भी एक आईडी दे देते हैं विच इज़ सेकेंड आईडी, टेस्ट आईडी, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो 2 आईडी हमने बनाया, एक पैराग्राफ टैग का और एक H1 टैग का, है ना। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, है ना, आई एम जस्ट गो टू द इनसाइड। अभी मैं इसको कमेंट कर दूँगा सब कुछ, है ना। और इसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, वैल्यू रहने देते हैं बाई डिफॉल्ट, ठीक है। एंड आई विल जस्ट सेव इट एंड आई विल गो ऑन दैट पर्टिकुलर पेज, ठीक है, जस्ट रिप्लेस दिस पेज, ज़्यादा कुछ चेंजेस होगा नहीं, है ना। अभी मुझे क्या करना है कि आई नीड टू एक्सेस, तो एक होता है मेथड दैट नेम इज़ गेट एलिमेंट बाई आईडी, यानी जो भी आईडी हम लोग यूज कर रहे हैं उस आईडी के मदद से आपको एक्सेस करना है कुछ भी। सो यू कैन यूज वन मेथड, दैट मेथड नेम इज़ गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल सबसे पहले बनाऊँगा, कॉन्स्ट ए, ओके, ए इज अ वेरिएबल नेम, ओके। इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, एंड इनसाइड इट वी नीड टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर आईडी। तो आईडी का हमारा क्या नाम था, यहाँ पे आईडी का नाम था हमारा माई आईडी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर माई आईडी, है ना, सेमीकोलन लिखूँगा यहाँ पे। और इसके बाद अभी माई आईडी जैसे ही लिखा तो पूरा पर सेलेक्ट हो गया, अभी मैं कुछ कर नहीं रहा, है ना। और इसके बाद में होता है इनर HTML, है ना। तो जो यहाँ पे मेरा वेरिएबल था उस वेरिएबल का यूज़ करूँगा, फिर डॉट इनर HTML लिखूँगा और उसमें जो भी
वेरी मतलब इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ए डॉट इनर एस टी एम एल, राइट, इनर एस टी एम एल, ओके। जैसे यहाँ पे है कैपिटल एस टी एम एल एंड वी कैन असाइन व्हाट वी कैन असाइन एनी पर्टिकुलर की, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो अभी असाइन किया, अभी ब्लैंक लिखा है तो मतलब यहाँ पे हट गया, है ना। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा कि नौ h1 tag content is change, इसको सेव करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिख रहा है नाउ h1 टैग कंटेंट इज चेंज, ठीक है। इस तरीके से हम आईडी का यूज़ करके किसी भी कंटेंट मतलब इफ़ यू वांटेड टू चेंज विद द हेल्प ऑफ आईडी, है ना, सो यू कैन यूज वन मेथड, दैट मेथड नेम इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एंड वी कैन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर आईडी, है ना। उसमें बस पास करना है और उसमें जैसे पास करेंगे तो जो वेरिएबल हमने बनाया है विच इज़ ए, यू कैन राइट योर ओन वेरिएबल नेम, मैंने ए लिखा है, ए को बस ए डॉट इनर एच टी एम एल लिखना है एंड वी कैन पुट इट ओवर देयर, इज एवरीथिंग, है ना। तो इस तरीके से हम कोई भी कंटेंट को चेंज कर सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। तो टिल दैट गाइज, टिल इट इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर इशूज यू कैन आस्क क्वेश्चंस, है ना। कोई भी डाउट अभी तक समझ में नहीं आ रहा हो कैसे चल रहा है, लाइक व्हेन आई टॉकिंग अबाउट डॉम थोड़ा कन्फ्यूजिंग चीज़ है, सो माइट विल फेसिंग इशूज़, है ना, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट इट्स वेरी इजी, है ना। ऐसा नहीं है कुछ, जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड डॉक्यूमेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड विंडो, वी नीड टू अंडरस्टैंड चाइल्ड नोट्स, then we need to understand how we can access any particular ID with the help of get element by ID and all, है ना। तो बस इतना ही सीख लो एंड इतना, जैसे गेट एलिमेंट बाई आईडी से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आईडी को सेलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से होता है हमारा क्लास भी, तो किसी भी क्लास को भी सेलेक्ट करना है तो यू कैन सेलेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ क्लास। तो मैं यहाँ पे आईडी के बजाय क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड टेस्ट आईडी इसका नाम है, मतलब टेस्ट क्लास लिख देते हैं या फिर माई क्लास लिख देते हैं, माई क्लास। एंड इस माई क्लास को मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट इसको कॉपी करूँगा, escape.js के अंदर जाऊँगा, ठीक है। अब मुझे इसे सेलेक्ट करना है, इस वाले क्लास को, तो कैसे सेलेक्ट करूँगा, आई एम जस्ट गोइंग हियर, मैं लिखूँगा यहाँ पे कॉन्स्ट बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट योर डॉक्यूमेंट डॉट एंड उसके बाद होता है गेट एलिमेंट बाई क्लास, इस तरीके से गेट एलिमेंट बाई क्लास, और इसके अंदर जो भी हमारा क्लास का नाम था वो पास कर देंगे माई क्लास, है ना। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, बी डॉट इनर एच टी एम एल, है ना, एंड इनर एच टी एम एल में कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। तो देखो पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ के अंदर ये था, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ और सेव करूँ, ऐसे चला क्या। ओके, ठीक है। अभी हम चेंज नहीं हो रहा तो कोई लाइक वी कैन चेंज लाइक दैट। अगर फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना चाहता, मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसी चीज़ को जो मतलब कंटेंट यहाँ पे लिखा है ना, मैनिपुलेट द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड ऑल द थिंग्स, इसे मुझे कंसोल में प्रिंट कराना है ना। मुझे देखना है कि कैसे दिख रहा है ये, है ना, कंसोल में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कंसोल करा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड वी कैन पास ओवर द बी, ठीक है। ऐसे मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे जाऊँगा, है ना, और यहाँ पे कंसोल में गया तो HTML कलेक्शन 1 आया हमारे पास, और कलेक्शन के अंदर हमारे पास क्या आया, पी क्लास, यानी एक माई क्लास है ना। और दैट आवर लाइक पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग के अंदर हमारा माई क्लास नाम से एक क्लास बनाया हमने जिसका लेंथ 1 है, दैट इज क्लास HTML कलेक्शन, ठीक है। इस तरीके से हम प्रिंट भी करा सकते हैं इसे, आप देख भी सकते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं,
नेम है आइटम, देन लाइक लेंथ भी देख सकते हैं, सब कुछ मतलब जो भी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल है वी कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, पहले वाला रिप्लेस हो जाएगा, पहले वाला आ जाएगा एसेंशियल जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट प्लीज है ना, इस तरीके से। तो हम आईडी को सेलेक्ट करना है तो वी कैन सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड क्लास को सेलेक्ट करना है तो वी कैन सेलेक्ट विद गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम्स, है ना। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, फॉर एग्जांपल इसी तरीके से टैग टैग भी होते हैं, जैसे मान लो कि जितने भी टैग है, टैग को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो टैग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये पैराग्राफ टैग है, H1 टैग है, पैराग्राफ टैग है, देन बटन टैग है, तो इसको भी सेलेक्ट करना चाहते हो, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। हाउ यू कैन सेलेक्ट इट, तो जस्ट राइट ओवर देयर कॉन्स्ट टैग, ऐसे लिख लो टैग। ठीक है, और एक यूज कर सकते हो गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट। So we can write here document dot get element by id, sorry get element by tag name, है ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्या लिखा, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। ओके, एंड इसके अंदर जो भी टैग है, जैसे पैराग्राफ टैग को सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पी टैग। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर एबल टू सेलेक्ट द पैराग्राफ टैग, और मान लो कि मुझे प्रिंट कराना है इसे, है ना, सो वी कैन प्रिंट इट लाइक दैट। लॉक करा लूँगा मैं इसे, है ना, और लॉक कराने के बाद आई एम गोइंग टू प्रिंट द टैग, सेव इट एंड गो ऑन द हियर, जस्ट क्लिक ऑन इंस्पेक्ट और यहाँ पे आ जाओ आई। एक मिनट, इसको पहले करते हैं कमेंट। यहाँ पे करते हैं डी आई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब जाऊँगा तो यू आर एबल टू सी कि जो पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग के अंदर हमारे हमारे पास क्या था, क्लास था, है ना। अगर मैं यहाँ पे HTML वाला कोड खोलूँ तो पैराग्राफ टैग था इस तरीके से हमारे पास। पैराग्राफ टैग के अंदर हमने क्लास बनाया था, उसके अंदर कुछ थोड़ा सा कंटेंट था इस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें प्रिंट करेंगे। तो हमारे पास HTML कलेक्शन वन आया और वहाँ पे t डॉट माई क्लास है, पैराग्राफ टैग के अंदर माई क्लास करके एक क्लास बनाया हमने, और उसका लेंथ जो है 1 है, और उसके जो भी टाइप्स हैं HTML कलेक्शन जो भी चीज़ें वो प्रिंट हो रही है। और भी उसके अंदर जाऊँ कि तो क्या लिखा गया है, तो इनर HTML में यू आर एबल टू सी इट इज़ रिटन मैनिपुलेट द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एंड इनर टेक्स्ट में भी लिखा गया है मैनिपुलेट द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिखा गया है वो इस तरीके से प्रिंट हो रहा है हमारे कंसोल में, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस HTML कलेक्शन। ठीक है, ये सारी नल्स हैं चीज़ें, तो नल क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ असाइन नहीं किया इस वजह से नल है ना। चाइल्ड नोड में अगर मैं जाऊँ तो चाइल्ड नोड में 0 है, लेंथ इसका टेक्स्ट 0 है, तो उसमें कुछ हमने बनाया ही नहीं, बस डाटा में आ रहा है कि डाटा में ये डाटा आपने इंसर्ट करा। ठीक है, उसका लेंथ क्या है 42 है। ठीक है, तो ये हो गया गाइस, किसी भी टैग को सेलेक्ट करके उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आइदर यू कैन इफ यू वांटेड टू access that particular tag values and all, so you can use get element by tag name, and उसके अंदर टैग को पास कर दो, पैराग्राफ टैग, एंकर टैग, बॉडी टैग एंड ऑल टैग, एंड you can print the details like that. ठीक है, after that you can remove it।
ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने लाइक वी आर एबल टू सी द व्हाट इज विंडो, व्हाट इज डॉक्यूमेंट, how we can access document body, how we can access document head, how we can change the color, and then how we can change the text which we are written already with the help of like a paragraph tag and h1 tag. So how we can select it and how we can change the proper text, entire text dynamically with the help of JavaScript. Then we are able to see how we can access any particular id. So like there is one method, that method name is get element by id, and with the help of this method we can access any particular id and we can change the content of it, either we can print of it. And so how we can access any particular class, so we can access any particular class with the help of get element by class name. Similarly, for example, if you wanted to access any particular tag with the help of any particular tag name, so for that we have one method, that name is get element by tag name. So इसका यूज करके हम किसी भी मेथड को एक्सेस कर सकते हैं. सो दिज ऑल अबाउट गाइस डॉम मैनिपुलेशन. डॉम मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे मान लो कि कोई वेबसाइट में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, है ना, या फिर टेस्ट कर, कोई वेबसाइट बना रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हें HTML और CSS का कोड नहीं है तुम्हारे पास एक्सेस फॉर एग्जाम्पल, and you wanted to test it that particular entire website, so with the help of JavaScript you can easily test it entire website. टेस्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डायनेमिकली चेंज कर सकते हो उसके अंदर, है ना. तो ओके, देखो ना, इतना हमने सब कुछ चेंजेस करा और हमने मतलब HTML में ज़्यादा कुछ चेंज किया नहीं. HTML में जो हमारा पहले था वही है, CSS में जो हमारा पहले था वही है, बट वी आर एबल टू चेंज द ऑल द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ JavaScript. इवन द कलर, टेक्स्ट, बटन्स एंड ऑल, कुछ भी करना है ना, वी कैन चेंज इट विद द हेल्प ऑफ JavaScript. इसी तरीके से हमारे पास होते हैं क्वेरी सेलेक्टर्स, है ना. तो क्वेरी सेलेक्टर्स भी होते हैं. क्वेरी सेलेक्टर्स की मदद से जिस तरह से हम टैग नेम को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से हम क्वेरी सेलेक्टर्स की मदद से हम किसी भी टैग को सेलेक्ट कर सकते हैं. तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस, है ना. तो मैं इसको करता हूँ कमेंट. एंड क्वेरी सेलेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है. और मैं इसमें क्या साइन करता हूँ, मैं इसमें साइन करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है. इनसाइड इट आई एम गोइंग टू पास इट हियर पैराग्राफ टैग, ठीक है. और मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है. एंड मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट एक बार लॉक कराना चाहता हूँ मैं फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है. देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक काम करते हैं, पैराग्राफ टैग 2 बार बनाते हैं, ठीक है. और इसमें कुछ कंटेंट चेंज कर देते हैं, ठीक है. इसका क्लास भी हटा देते हैं. दिस इज सेकंड पैराग्राफ, ठीक है. अब मैं इसे जैसे सेव करूँगा, सेव करने के बाद यहाँ पे जा रहा हूँ इसके टैग पे, है ना. और यहाँ पे इस पर करके जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ टैग हमारा प्रिंट होके आ रहा है ना, कि क्लास माई क्लास है और उसके अंदर जो भी चीज़ें हमने लिखी थी वो प्रॉपर प्रिंट होके आ रहा है. यानी जो भी पहला पैराग्राफ मिलता है, क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है कि क्वेरी सेलेक्टर जो भी पैराग्राफ पहला मिलता है, कोई भी पैराग्राफ या फिर आईडी या फिर क्लास, कुछ भी मिलेगा, जो पहला अक्षर मिलेगा उसे ही वो रिटर्न करता है ना. तो सबसे पहला पैराग्राफ इसमें क्या मिला, पहला पैराग्राफ मिला क्या, दिस वन, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, एंड इसी की वो रिटर्न करता है. इसी तरीके से अगर मैं माई आईडी डालता हूँ यहाँ पे, है ना, माई आईडी लिखता हूँ, माई आईडी, और सेव करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, है ना. सॉरी, नल आ रहा है, ठीक है, आ रहा है नल. सिमिलरली अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे क्लास के अंदर, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई क्लास, सेव करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, अभी भी क्या आ रहा है, नल, ठीक है. इस तरह से तो एक मतलब क्वेरी सेलेक्टर से क्या कर सकते हैं हम,
लाइक इफ आई एम यूजिंग गाइस क्लास, इसके अंदर जो भी कंटेंट है ठीक है। तो मान जो कि जब क्वेरी सेलेक्टर हम यूज करते हैं तो एक बार मतलब जो भी फर्स्ट पैराग्राफ होता है यानी फर्स्ट जो भी कुछ मिलेगा वो रिटर्न करेगा, है ना। इसके अलावा एक हमारे पास और भी सेलेक्टर होता है, क्वेरी सेलेक्टर ही होता है, दैट नेम इज क्वेरी सेलेक्टर ऑल। उसमें क्या होता है कि मान जो कि जितने भी पैराग्राफ टैग एग्जिस्ट करते हैं हमारे एच टी एम एल कॉन्टेंट एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के अंदर, सारे पैराग्राफ टैग को ये क्या करता है, रिटर्न करता है। तो वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल लाइक दैट लेट ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, एंड वी कैन असाइन लाइक दैट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है। एंड इसके अंदर हम पास करते हैं कि क्या, फॉर एग्जाम्पल टी, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर लॉक कराऊँ ऑल एलिमेंट्स, मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे जब जाऊँ तो इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो सब प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिख रहा है, पैराग्राफ टैग माई क्लास, देन सेकेंड वाला पैराग्राफ मिल रहा है, उसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा था वो। तो जो पहला वाला पैराग्राफ यहाँ पर देख पा रहे होगे, पहले वाले पैराग्राफ में माई क्लास हमारा लिख के आ रहा था, है ना। पहले वाले पैराग्राफ के अंदर माई क्लास हमने लिखा था आईडी का नाम, और दूसरे पैराग्राफ के अंदर कुछ भी नहीं लिखा था हमने, है ना। तो इसी तरीके से प्रिंट हो इस तरीके से। कंसोल डॉट लॉग के बजाय मैं dir अगर करूँ यहाँ पे और इसको कमेंट कर देता हूँ, और इस तरह नोट लिस्ट में जाएँ वन चीज़, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो इनर वाला टेक्स्ट है वो ऐसे है। पैराग्राफ टैग के अंदर गए तो पैराग्राफ टैग के अंदर जो इनर वाला टेक्स्ट था दिस इज सेकेंड पैराग्राफ, इस तरीके से ये देख रहे हैं, है ना। तो ये क्या करता है कि जितने भी पैराग्राफ होंगे, है ना, सेम नाम से, उस सबको रिटर्न करेगा, है ना, क्वेरी सेलेक्ट ऑल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायनेमिकली चेंजेस करने के लिए, है ना, डायनेमिकली एड करने के लिए, इसमें चेंजेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो जितना मैंने यहाँ पे बताया सब कुछ, जैसे यहाँ से स्टार्ट करोगे सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गो थ्रू वन बाय वन लाइन ऑफ कोड, है ना। इसको खुद से प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक समझ में नहीं आएगा, है ना। एंड फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांटेड टू लाइक गो थ्रू लाइक दिस पर्टिकुलर, और भी बहुत अच्छे सीखना है, सो गो थ्रू दैट पर्टिकुलर लाइक वेबसाइट लाइक गिग्स फॉर गिग्स आइदर W3 स्कूल, और यहाँ पे प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स बहुत सारे पड़े हैं पहले से, है ना। जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस दोज एग्जाम्पल, है ना। जैसे ये एग्जाम्पल है प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस करो, है ना, एंड विल बी एबल टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। Till 8 guys, if you have any particular issues, doubt, you can ask questions. इसी तरीके से गाइज चलो, if you don't have doubt, then we'll move to the next topic. That our next topic is add event listener, and so we are using add event listener as well in JavaScript, and that is the last topic uh, taken for today's lecture, है ना। So when I talking about add event listener guys, है ना, उसके लिए हम करते क्या है कि सबसे पहले एक HTML फाइल दूसरा बनाता हूँ, है ना। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ये तो रहने देता है ऐसे, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाते हैं, तो मान जो कि मुझे एक बटन बनाना है, तो आई एम जस्ट टाइप हियर और बटन डॉट HTML, बटन HTML, बटन डॉट HTML, ठीक है।
मैं यहाँ पे छोटा सा कोड जनरेट करा लेता हूँ, है ना। और कोड के अंदर मैं यहाँ पे आएंगे टाइटल टैग के अंदर ऐसे ही रहने देंगे, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बॉडी टैग के अंदर आ जाते हैं, बॉडी टैग के अंदर चेंज करना बहुत ज़रूरी है ना। तो मान लो कि बॉडी टैग के अंदर मैं एक हेडिंग आईडी बना देता हूँ, आईडी शुड बी हेडिंग, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं दे देता हूँ हेलो, ठीक है। और इसके नीचे मैं एक बटन बनाता हूँ, है ना, बटन। और बटन टैग के अंदर भी मैं एक आईडी दूंगा, है ना। आईडी में दे दूंगा बटन BTN, और इसके अंदर दे देता हूँ मैं चेंज टेक्स्ट। इसको सेव करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा। तो इस तरीके से हमारे पास दिख रहा है ना। हमारे पास येलो वर्ड आ रहा है, हमारे पास चेंज टेक्स्ट करके आ रहा है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी आई वांटेड टू एड अ जावा स्क्रिप्ट कोड हियर। तो जावा स्क्रिप्ट कोड ऐड करने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ता है, एज यू ऑलरेडी नो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग का कोड लिखेंगे, SCRAPT स्क्रिप्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पाथ दे देता हूँ, SRC दे देता हूँ, सोर्स पाथ, दे देते हैं app.js इज ऑलरेडी क्रिएटेड, script.js इज ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है। तो button.js दे देते हैं, btn.js, थोड़ा सा और अच्छा लिख देता हूँ, button.js ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ और एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज करूँगा, ठीक है। तो हमारा यू ऑलरेडी नो कि ये सब कुछ हमने कर लिया, H1 टैग का यूज़ कर लिया, बटन टैग का यूज़ कर लिया, देन स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर लिया। अब हमें बस जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर मुझे लाइक इस हेडिंग को एक्सेस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हेडिंग है ना, इसको मुझे एक्सेस करना है, इस आईडी को, तो मैं क्या करूँगा कि उस हेडिंग को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, देयर इज वन मेथड विच वी ऑलरेडी नो, कि एक मेथड होता है जिसका नाम होता है गेट एलिमेंट बाई आईडी। इस मेथड को हम यूज करते हैं टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर आईडी, राइट। इसे हम एक्सेस करते हैं। तो एक वेरिएबल में बनाता हूँ कॉन्स्ट हेडिंग, ठीक है। और हेडिंग में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे असाइन करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, है ना, गेट एलिमेंट बाई आईडी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आई एम जस्ट पासिंग हियर हेडिंग, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा और इसके बाद एक और हमारे पास आईडी है, दैट आईडी नेम इज़ बटन। इसको भी हम लोग एक्सेस कर लेंगे, है ना। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट बटन के लिए बटन नाम का वेरिएबल बना लो ऐसे, ठीक है, बटन, ठीक है। एंड यहाँ पे भी लिख लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे हम पास कर लेंगे बटन को। तो बटन हमारा क्या था, BTN आई थिंक, राइट, हाँ बटन। तो यहाँ पे लिख लेंगे बटन BTN, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, दोनों आईडी को हमने सेलेक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ गेट एलिमेंट बाई आईडी मेथड। अब हमें क्या करना है कि जैसे इवेंट लिस्नर मैं लगाना चाहता हूँ, तो जैसे ही कोई यहाँ पे क्लिक करे, चेंज टेक्स्ट पे क्लिक करे, तो जो टेक्स्ट है ना, हेलो वर्ड चेंज होके कुछ और यहाँ पे लिखा जाए, मैं ये करना चाहता हूँ, है ना। दैट इज़ नोन एज इवेंट लिस्नर। तो क्लिक करने वाली प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई क्लिक करे तो ये वाला टेक्स्ट ही पूरा चेंज हो जाए, है ना, विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट, है ना। हम लोगों ने HTML CSS की मदद से तो देखा ही है, बट जावा स्क्रिप्ट की मदद से हमें देखना है। सो आई एम जस्ट यूजिंग योर बटन, है ना। बटन के बाद एक होता है एड इवेंट लिस्नर, यहाँ पे आ भी रहा है एड इवेंट लिस्नर। अगर मैं बताऊँ कि एड इवेंट लिस्नर क्या होता है, सो यू आर एबल टू सी एड इवेंट लिस्नर इज अ मेथड ऑफ इवेंट टारगेट इंटरफेस एंड सेट ऑफ अ फंक्शन दैट विल कॉल्ड वेन एवर स्पेसिफाई इवेंट इज डिलीवर्ड टू द टारगेट। यानी जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद जैसे कुछ भी करते हैं,
तो ऑटोमेटिकली वो पूरा चेंज करेगा उसे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसमें आ जाऊँगा और यहाँ पे पास करूँगा मैं क्लिक। जैसे ही कोई यहाँ पे क्लिक करता है इस तरीके से, ठीक है, तो एरो फंक्शन दे देते हैं। इस तरीके से एरो फंक्शन यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। जैसे ही कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो जो हेडिंग का टेक्स्ट कंटेंट है ना, हेडिंग का जो टेक्स्ट कंटेंट, मतलब ये जो हेडिंग के अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट ये हेलो वर्ड है, इसको मुझे चेंज करना है। तो व्हाट वी कैन राइट योर हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और इसके अंदर जो भी कंटेंट है आई वांटेड टू चेंज इट, है ना। सो वी कैन राइट योर डॉम मैनिपुलेशन सक्सेसफुल, ठीक है, ठीक है। सक्सेसफुल, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैं अब जैसे यहाँ पे जाऊँगा, इसको सेव करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से इसको रिप्लेस करूँगा और चेंज टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा ना, तो देखो जैसे चेंज टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा टेक्स्ट पूरा चेंज हो जा रहा है। मैनिपुलेशन का गलत स्पेलिंग है, मैनिपुलेशन सक्सेसफुल, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे चेंज टेक्स्ट पे करूँगा तो पूरा चेंज हो जाएगा। अब मैं चाहता क्या हूँ कि जैसे टेक्स्ट भी चेंज हो, टेक्स्ट के साथ में कलर भी इसका चेंज हो जाए, इस टेक्स्ट का। तो कलर चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट योर हेडिंग, और हेडिंग के अंदर जो स्टाइल होता है उसको करेंगे सेलेक्ट, और उसके बाद कलर को कर लेंगे सेलेक्ट। आइदर कलर आइदर बैकग्राउंड कलर को भी कर सकते हैं सेलेक्ट। मैं चाहता हूँ रेड हो जाए, है ना। तो मैं इस पर जाऊँगा, इस पर जैसे टेक्स्ट चेंज करूँगा तो रेड हो रहा है ना। इस तरीके से मैं चाहूँ तो यहाँ पे येलो भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ग्रीन भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ग्रीन हो रहा है। चाहूँ तो बैकग्राउंड कलर भी कर सकता हूँ, बैकग्राउंड पूरा बैकग्राउंड ही इसका चेंज हो गया, है ना। इस तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ गाइस वी कैन यूज़ इवेंट लिसनर। हमने किया क्या कि सबसे पहले हमने हेडिंग को सेलेक्ट किया है ना। हेडिंग है क्या, तो हेडिंग एक आईडी है जो कि H1 टैग का है, और बटन का आईडी है बटन BTN। दोनों को मैंने, हेडिंग को और बटन को दोनों को सेलेक्ट किया, है ना। उसके बाद बटन डॉट इवेंट एड इवेंट लिसनर हमने यूज किया, है ना। गेट एलिमेंट को आईडी से सेलेक्ट किया, फिर हेडिंग में असाइन कर दिया उसको, फिर बटन को सेलेक्ट करके बटन में असाइन कर दिया। फिर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, और जैसे ही उस पर कोई क्लिक करे तो उसमें क्या हो, हेडिंग का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो टेक्स्ट कंटेंट चेंज हो जाए, है ना। एंड उसके साथ में उसका कलर भी, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि हेडिंग का जो स्टाइल है, स्टाइल के अंदर जो कलर है उसका, है ना, वो हो जाए ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे सेव करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा तो जैसे क्लिक करूँगा उसका टेक्स्ट ब्लैक हो रहा है, तो ब्लैक से थोड़ा सा वाइट कर देते हैं अभी, है ना। अभी डॉम मैनिपुलेशन सक्सेसफुल वाइट में आ रहा है ना। सो दिस इज द प्रॉपर डॉम मैनिपुलेशन एंड इवेंट लिसनर गाइस, है ना। टिल एट इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट यू कैन आस्क क्वेश्चंस, नहीं तो यार अब सेशन को रैप करते हैं, है ना। सो मुझे यही बताना था कि लाइक how we can use DOM manipulation in JavaScript. This is very important thing to understand. विदाउट DOM manipulation किए तुम्हें कुछ भी लाइक डेवलपमेंट में या फिर प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाओगे। फॉर दिस रीजन मैं ये बता रहा हूँ, है ना। इवन दो लाइक आने वाले टाइम में हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, है ना, जहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज होंगी, है ना। ठीक है, ठीक है। तो मैं एक कोड पुश कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, है ना। और मैं सर लोग और डिर में क्या फर्क है? लोगो
log और dir. कहाँ पे है ये लोगो डेर? लॉग एंड डेर, आई एम नॉट Yes, गेटिंग। sir. लॉग एंड डेर ये कहाँ पे देखा? Sir, console dot dir. अरे We अरे used. अरे, ओ सॉरी, Yes, sir. कंसोल की बात कर रहे हो, ओके ठीक है। अरे ये ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, जब कंसोल लॉक करता हूँ तो ये बस चीज़ों को लॉक कर देता है, प्रिंट कर देता है, ठीक है। अगर मैं कंसोल डॉट dir प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, पढ़ो इसको। ये एक स्टैटिक मेथड है, जैसे वो भी नॉर्मल एक मेथड था, ये भी एक नॉर्मल मेथड है जो कि डिस्प्ले करता है लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को, ये मैंने बताया भी है, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को जो कि ऑलरेडी स्पेसिफाई है इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, है ना। इन ब्राउजर कंसोल आउटपुट इज प्रेजेंट इन द हायरार्किकल लिस्टिंग विद द डिस डिस्क्लोजर ट्रिंगल्स दैट लेट यू सी द कंटेंट ऑफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो जितने भी उसके अंदर चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर नोट्स हैं, सब कुछ तुम्हें दिखने लगता है ना। अब जब हम लॉक कराते हैं तो बस जो चीज़ें प्रिंट होती हैं, उसके अंदर जितने भी कंटेंट है, चाइल्ड्स हैं, नोट्स हैं, उसके जितने भी उसके अंदर क्लासेस मौजूद हैं, वो सब दिखती नहीं है ना। इस वजह से हम डायरेक्ट dir का यूज़ कर रहे हैं, है ना। अगर इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो यू कैन गो थ्रू द एम्बिएंट डिफरेंस, है ना, और यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? कोई नहीं क्वेश्चन है? नो सर, हाँ नो। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, है ना। डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है, यहाँ से कोड को ले लेना, है ना। ट्राई टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग, एंड कल मिलते हैं लेक्चर में। ठीक है, मैं कल देखता हूँ कौन सा प्रोजेक्ट करा सकते हैं, है ना। सो विल स्टार्ट वन प्रोजेक्ट कल। अभी और भी जावास्क्रिप्ट के कई सारे कॉन्सेप्ट पेंडिंग है ना, उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है यार, चलो।